Great. So what's your idea quotient? Okay. I think we all, are talking about startup and participating in women entrepreneurship program. Sanjay Bhai was talking about the nurture program that we are planning to launch in Surat. So I think for all these programs, the trigger point is an idea, you know. So we all have a lot of ideas. We roam around with a lot of ideas. So the trigger point is idea. And how do you take that idea forward? How do you look that idea from a business point of view? You might find an idea very exciting, but does that idea has the potential to convert into a venture or not? How do you look at that? So let's try to understand that first. So what is a typical journey of an idea? Uh, Whenever we first encounter an idea, it's always a confusion and a chaos. There are a lot of thoughts in your mind, confusion, a lot of ways to build that idea forward. So what do? Then you start streamlining your thought process. You start talking to your friends, your maybe teachers, your mentors, your business partners, your customers. Then you try to get some feel कि whether this idea will work or not. यार ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कस्टमर क्या बोल रहे हैं उसके बारे में. So then you slowly try to give shape to an idea. That is phase 2. You kind of validate that idea. Then once you are confident कि हाँ यार ये idea के लिए तो I'll get some customers, थोड़ा पैसा बन सकता है idea में. So then you will try to actually develop that idea into what the startup world में जो हम कहते हैं minimum viable product, MVP. You develop that and then actually the journey starts of traction. Traction means getting the initial few customers. So this is a typical idea journey from confusion to streamlining your thought process to actually seeing that idea converting into a business venture. This is an idea journey. But then the question is यार कितना टाइम लगना चाहिए सब में? क्या मैं एक वीक में आइडिया डेवलप कर लूं, एक साल में कर लूं, 10 साल में करूं? What is the typical time frame? So there are no formulas for that. We have seen a lot of people talking about ideas for years. Now, those are, I would say, talkers, the wanapreneurs rather than an entrepreneurs. So that's a very, very long time. But typically, जो देखा गया है, which is there are 4 phases of idea development. One is a stage 1, which is an idea stage. Typically, it should take 1 month, to get clarity about the idea, to write that first draft of concept, so that's where the idea actually takes shape. Second stage is a concept stage, which is typically a 2 to 4 month process, जहाँ पे हम उसको business point of view से देखेंगे, from a functional point of view we'll evaluate, from a technical feasibility point of view evaluate, whether we'll try to see whether this is how viable this is for me to take this idea forward or not. So यहाँ पे we'll even talk to few customers, we'll do some research about that idea. ये टिपिकली 2 से 4 महीने की जर्नी है. ये फेज 2 होता है. फेज 3 is actually you do something about it. Now the biggest challenge most of the entrepreneurs face is they never reach the stage 3 because phase 1 and phase 2 is all about thinking and talking. हम बात कर रहे हैं कि यार मेरे पास ये आइडिया है, कस्टमर से बात कर रहे हैं, फ्रेंड से बात कर रहे हैं, घर पे बात कर रहे हैं. तो ये तो वेरी रोमांटिक फेज होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2. But then when the third stage comes कि भाई अभी actually idea को मुझे implement करना है. Now this is a very very critical stage. यहाँ पे हम वो beta product बनाते हैं, minimum viable product बनाते हैं. And these days now there are a lot of ways to actually do that. कि आज हमारे पास 3D printers available है तो एक basic prototype बना सकते हैं. There are a lot of ways to reach that stage. But this is a very very important stage. This is a proof of concept stage कि हाँ ये idea जो आपने सोचा था, you can actually create something and then there are few customers who are going to use it and they are going to give you some feedback. हम यहाँ पे product properly launch नहीं कर रहे हैं but एक test कर रहे हैं, beta test कर रहे हैं. So third stage is very very critical. This stage gives you that confidence कि हाँ यार अभी मैं कंपनी फॉर्म कर सकता हूँ, अभी मैं टीम बना सकता हूँ, थोड़े फिक्स कॉस्ट बर्डन करने की थोड़ी तैयारी कर सकता हूँ. तो फोर्थ स्टेज इज योर कंपनी फॉर्मेशन स्टेज and then the commercialization and the growth and the turnover and customer acquisition ये सब आपका शुरू होता है. So broadly 4 स्टेज होता है. So ideally typically 6 to 9 months में आप कंपनी फॉर्मेशन स्टेज में
पहुंच जाने चाहिए। काफी लोग बहुत जल्दी भी पहुंच जाते हैं, कुछ लोग 1 साल के बाद भी पहुंचेंगे। नाउ दैट डिपेंड्स, बट आई थिंक बहुत मतलब यू कैन नॉट टॉक अबाउट आइडियाज फॉर 2 years 3 years बिकॉज पूरा डायनेमिक्स इतना जल्दी चेंज हो जाता है कि वो आइडिया की वैलिडिटी खत्म हो जाती है। So I think you need to act very fast, especially in today's world. So this is a typical stage process, stage of idea development. और हर एक एंटरप्रेन्योर अलग अलग स्टेज पे हो सकता है। ओके, इनफैक्ट हमारे अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए भी विल बी हैविंग दोस काइंड ऑफ अर्ली स्टेज आइडियाज विद लॉट ऑफ ट्रैक्शन। तो ये टिपिकल आइडिया का फेजिस है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आइडिया तो है बट एंड वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट आइडिया। एंड जैसे विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि देयर इज नथिंग मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। सो नाउ वी आर वेरी पैशनेट एंड हमें आगे बढ़ना है। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आता है कि whether you are applying for Thai women program or whether you are applying for Thai nurture program or whether actually you are thinking of developing this idea further, so you need to talk to your parents, your your partner, your financial partners, your investors. तो ये लोग करेंगे क्या? आपको सवाल पूछेंगे। They are going to ask you lot of questions. तो बिफोर गेटिंग इनटू हम आइडिया क्वेश्चन क्या है और बिजनेस मॉडल क्या है, हम पहले समझने का ट्राई करेंगे कि हमें क्या सवाल पूछे जाने वाले हैं। बेसिक सवाल जो हमें पूछे जाने वाले हैं, व्हाट आर द बेसिक क्वेश्चंस? देयर आर 10 क्वेश्चंस दैट वी शुड बी रेडी टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, डिफाइन योर पेन पॉइंट। I think this is the fundamental question that you need to answer, that what problem you are solving, what pain point you are solving. You have that clarity because हर एक आइडिया का ट्रिगर, जो हम आइडिया जनरेशन का ट्रिगर बोलते हैं, आइडिया जनरेशन लॉट ऑफ अलग अलग तरीके से हो सकता है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है वो है कि भाई हमने एक पेन पॉइंट देखा, हमने कस्टमर की चैलेंज देखी, यूजर की चैलेंज देखी, एंड वी हैव ट्राई टू सॉल्व दैट चैलेंज। नाउ दैट challenge, that solution is your idea. So I think you have to be very very clear about what problem you are solving. Pain point क्या है? List down those pain point. Ask those guys कि actually ये pain point आपके लिए कितना important है। बहुत simple pain point है तो I may not even pay for it. But अगर important pay point है, I'll go extra mile to pay some premium for it. तो हमें पहले pain point define करना है, problem क्या solve कर रहे हैं वो define करना है। ये जो सवाल है वो कस्टमर सेंट्रिक सवाल है, तो पहले हमें कस्टमर सेंट्रिक कुछ सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे। तो ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, व्हाट इज द पेन पॉइंट, बिकॉज पेन पॉइंट गिव्स यू द मार्केट अपॉर्चुनिटी। दूसरा सवाल है, हाउ आर योर कस्टमर्स सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम टुडे, डू दे हैव होममेड सॉल्यूशंस। ये आ गया सवाल नंबर दूसरा कि भाई हाँ प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो सकता है, बट क्या किसी और के पास वो सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है तो क्या है, इंडिया में अवेलेबल है, ग्लोबली अवेलेबल है, लोकली अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, वो अभी कैसे सॉल्व कर रहे हैं, खुद कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो प्रॉब्लम। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जब बुक माई शो ने कंपनी लॉन्च किया तो उन्होंने देखा कि यार मुझे थिएटर में एक तो मूवी देखने से पहले भी थिएटर पे जाना पड़ता है, टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, ब्लैक मार्केट को पैसा देना पड़ता है, तो ये सब पेन पॉइंट है। तो मैं सॉल्व कर दूं कि भाई टिकट बुक कर लो ऑनलाइन। बट अभी ये पूरी एक्टिविटी में एक्चुअल पेन पॉइंट सॉल्व हो रहा है या हो रहा है, क्यों? बिकॉज टाइम का सेविंग है, कन्वीनियंस है। तो क्या हो गया, आज वी डोंट इवन माइंड पेइंग फॉर दैट कन्वीनियंस फी। तो ये क्या हो गया, उन्होंने आदत बदली हमारी, भाई अभी आप जाओ मत, घर से बैठ के टिकट बुक करो और आराम से यू स्ट्रॉल इनटू द मूवी थिएटर एंड एंजॉय द मूवी। बट उसके लिए अभी आपको थोड़ा कन्वीनियंस फी देना पड़ेगा। तो आई डोंट माइंड, मेरा पेन कम हुआ है, उसके लिए आई डोंट माइंड पेइंग। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और कैसे कर रहे हो और अभी क्या अवेलेबल सॉल्यूशंस है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। काफी बार क्या होता है, स्पेशली जो यंग एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, सो दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड, उनको पता ही नहीं रहता है कि यार ये प्रॉब्लम है, इसका मैंने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। बट ऐसे सेम सॉल्यूशन मार्केट में और 100 जन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट इट कि भाई बाकी के लोग क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों आपको जानना चाहिए? बिकॉज तीसरा क्वेश्चन भी आपको आंसर करना है। और क्या है वो तीसरा क्वेश्चन? व्हाट आर योर कॉम्पिटिटर्स, हु आर योर कॉम्पिटिटर्स एंड हाउ आर यू डिफरेंट। आई थिंक दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपका डिफरेंशिएटर क्या है, आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्या है,
आप बाकी के लोगों से अलग क्यों हो? ये आपका फंडामेंटल थर्ड क्वेश्चन है जो आपको आंसर करना है। कस्टमर सेंट्रिक क्वेश्चन है कि आप क्या डिफरेंशिएटर है, क्या यूनिक ऑफरिंग है आपका। अगर आप मी टू हैं तो मैं आपको आइडिया को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दूं। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा वो, हाउ मेनी कस्टमर्स डू यू करंटली हैव एंड हाउ डू यू प्लान टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। सो कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटजी। अभी ये सवाल टिपिकली पूछा जाएगा ऐसी कंपनियों को जो ऑलरेडी प्रोडक्ट लॉन्च कर चुकी है। तो आई एम श्योर कि उनकी कुछ जर्नी रहेगी या एटलीस्ट एक स्ट्रेटजी रहेगी टू एक्वायर कस्टमर्स। तो हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्राम्स होते हैं, नर्चर हो या अदर प्रोग्राम्स, टिपिकली दे प्रिफर कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। बहुत आइडिया स्टेज पे वी डोंट लाइक टू एसोसिएट विथ एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज हम भी चाहते हैं भी एंटरप्रेन्योर्स भी एक जर्नी करके एक जगह पे पहुंचे, सो दैट हम उनका कमिटमेंट देखें। तो आई थिंक जब भी एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, एक बेसिक प्रोटोटाइप रेडी हो जाता है, मार्केट में चला जाता है, 50 कस्टमर यूज करना शुरू कर देते हैं, भले वो पैसा ना दे, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट इस उधर तक की जब ये जर्नी होती है तो एक सामने वाले को कॉन्फिडेंस आता है कि भाई यस, दिस पर्सन इज कमिटेड अबाउट दैट आइडिया। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्रिटिकल हो जाता है कि भाई आपने कस्टमर्स को कैसे एक्वायर किया, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना पड़ेगा कि भाई आपके कस्टमर्स कौन है, कहाँ है वो कस्टमर्स, उनकी प्रोफाइल क्या है, उनकी साइकोग्राफिक प्रोफाइल क्या है, उनको क्या लाइक्स है, क्या डिसलाइक्स है, और उनको मैं कैसे रीच आउट करूं। क्या वो मुझे फेसबुक पे मिलेंगे कि इंस्टाग्राम के मिलेंगे या टिकटॉक के मिलेंगे, ऑफलाइन मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे मुझे, उनको रीच आउट करने के लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, व्हाट वुड बी द कॉस्ट टू एक्वायर दैट कस्टमर। अगर वो कॉस्ट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो मैं उनसे बेच रहा हूँ तो मेरा होल पर्पज इज डिफीटेड। तो अगर ये सब सवालों के आप जवाब करोगे तो अभी आपको पता चलेगा कि हाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ उसका कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड कुछ स्टोरी बन रहा है। तो आई थिंक यहाँ पे हमें वो क्लैरिटी आएगी कस्टमर एक्विजिशन की। तो ये सब सवाल थे हमारे कस्टमर फोकस। फिर आएंगे आपको सवाल टीम रिलेटेड, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक बहुत कॉमन नोशन है इन्वेस्टर कम्युनिटी में कि भाई वी डोंट फंड आइडियाज, वी फंड पीपल। वी आर इन्वेस्टिंग इन पीपल। व्हाई? बिकॉज टीम मैटर्स अ लॉट। अभी हम किसी से बात कर रहे थे बीच में, आई थिंक फ्यू आवर्स बैक ओनली वी वर हैविंग अ सेशन विद टाई पुणे टीम, द नर्चर टीम, एंड द टाई पुणे प्रेसिडेंट रवि जी सेड वेरी इंटरेस्टिंगली कि एक एवरेज स्टार्टअप फाउंडर एक ग्रेट आइडिया को फ्लॉप करा सकता है, बट एक ग्रेट फाउंडर एक एवरेज आइडिया को सक्सेसफुल करा सकता है। तो ये ब्यूटी है ऑफ द फाउंडर। ओके, कि टीम क्या है। तो पहला तो सवाल आएगा भाई टीम में क्या सवाल पूछे जाएंगे। एक है कि व्हाई डिड यू स्टार्ट दिस कंपनी, व्हाट एक्साइट्स यू अबाउट इट। आई थिंक काफी बार क्या होता है कि हमें काफी लोगों के लिए पैसा इज एक्साइटमेंट, कि यार वैल्यूएशन की गेम है, बट वैल्यूएशन की गेम तो बहुत बात की बात है। शुरू में लोग को जानना रहता है भाई व्हाट इज दैट ट्रिगर, व्हाट इज दैट मोटिवेशन, व्हाट इज दैट so exciting about this idea कि you are going to invest your time, energy, money in this idea. What is the core purpose? I think ये आपको खुद को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये कन्विंस नहीं कर सकेंगे कि what is the purpose why you started this, आपका मोटिवेशन डगमगाने की पॉसिबिलिटीज हो जाती है। अगर आप देखेंगे कि जैसे रेड बस करके जो स्टार्टअप है, ओके, उसके फाउंडर की क्या ट्रिगर था, उनका क्या मोटिवेशन था कि भाई उसको खुद को ही घर जाने के लिए बस में बुकिंग नहीं मिल रहा था, पर्सनल पेन पॉइंट, एंड ही कुड कनेक्ट विद अदर्स, मेनी अदर पीपल हु कैन सिमिलरली फेस दिस पेन पॉइंट। पॉइंट से निकला हुआ पैशन आइडिया था, तो उनके ऊपर उन्होंने काम किया, उनका ट्रिगर था, एक पैशन था, एक एक्साइटमेंट था। तो सिमिलरली आपको भी पूछना पड़ेगा अपने आप को कि भाई आप क्यों एक्साइटेड है ये आइडिया के लिए। ये आंसर का और एक रीजन है देने का उसका जवाब कि बिकॉज ये जो आइडिया की जो जर्नी है वो एकदम रोजी जर्नी नहीं है, वो बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड जर्नी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी जर्नी है, चैलेंजेस आएगी, रुकावटें आएगी। तो अगर आपका मोटिवेशन, आपका रीजन, द पर्पस अगर क्लियरली डिफाइन नहीं है तो आप बहुत इजीली इसको छोड़ देंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा, आप आपकी भी एनर्जी वेस्ट करेंगे, आपके साथ जुड़े हुए लोगों की एनर्जी वेस्ट करेंगे, पैसा वेस्ट करेंगे, बहुत सारी चीज का नुकसान हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप ये सवाल का आंसर पहले दे दें। तो व्हाट इज द पर्पस। देन और एक जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड यू मीट योर को फाउंडर्स।
अगर आप देखें यहाँ पे हमने पूछा ही नहीं है कि आपके पास को फाउंडर है कि नहीं है. वी हैव अज्यूम्ड दैट यू हैव अ को फाउंडर. नाउ व्हाई दिस अजम्पशन? क्या ऐसा जरूरी है कि every startup should have a co-founders team? Not necessarily. There are successful examples like Paytm where there is no so-called co-founder. Okay, but then if you see most of the startups, most of the new businesses, co-founder team is always preferred for multiple reasons. एक reason है कि because one person cannot have all kinds of skill set. तो अगर कोई अच्छा इंजीनियर है तो कोई अच्छा मार्केटर है, कोई सेल्समैन है तो कोई ऑपरेशंस गाय है. So you need complementary skill set to start any business because business में you need multiple skill set. ये होता है क्वेश्चन नंबर रीजन नंबर 1. और एक चीज है कि अगर एक ही जन के ऊपर मैं पूरा दाव लगा दूं एंड यू नो कुछ अनहोनी हो गई और वो फाउंडर्स ही अगर ये जहाँ पे कंपनी को आगे नहीं लेके जा सके तो देन what will happen to the people associated with it? What will happen to the investment that they have got in this idea? तो ये चैलेंज हो जाती है. इसके लिए को फाउंडर्स का होना जरूरी है. तो अगर अभी अकेले स्टार्टअप फाउंडर हैं तो स्टार्ट लुकिंग फॉर अ को फाउंडर एंड व्हाट काइंड ऑफ को फाउंडर्स, वो भी बहुत जरूरी है. और इसके लिए ये 2-3 सवाल अभी जो आएंगे टीम रिलेटेड तो ये है कि भाई आप हाउ डिड यू मीट योर को फाउंडर एंड हाउ लॉन्ग हैव यू वर्क टुगेदर. बिकॉज काफी बार हमने देखा है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे 2 दोस्त हैं, मुझे एक आइडिया आता है, मैं मेरे एक दोस्त को आइडिया बोलता हूँ, यार ग्रेट यार लेट्स स्टार्ट दिस वेंचर. हम दोनों ने एक्साइटमेंट में वेंचर शुरू कर देते हैं. दोनों पैशनेट हैं, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों बहुत मेहनत करना चाहते हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं, कंपनी को आगे लेके जा रहे हैं. बट अभी वो कंपनी में एक स्टेज आएगा कि जब भी दोनों की कॉमन स्किल सेट है, उसकी जरूरत एक ही स्टेज तक थी, उसके बाद तो टीम बन गई है, उसके बाद बहुत सारी चीज डेलीगेट हो गई है. तो अब तभी रोल डेफिनेशन होना बहुत जरूरी है. अगर सब लोग टेकी हैं तो प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद कस्टमर कौन एक्वायर करेगा, तो ऐसे सवाल का जवाब पहले से हमारे पास होना चाहिए. और वो पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टीम, हमारी को फाउंडर टीम भी बिल्ड करनी चाहिए. और उसके साथ है कि भाई आप कितने टाइम से साथ में काम कर रहे थे, क्या आप साथ में काम कर सकते हो, आपका कंफर्ट लेवल क्या है, आपका कॉमन विजन है कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है. तो ये आपको आंसर करना पड़ेगा ऐसे सवालों के जवाब. दूसरा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा वो ये है कि हाउ मेनी टेकीज डू यू हैव एंड हु इज गोइंग टू जनरेट रेवेन्यू. ये 2 सवाल है एक्चुअली. एक, हाउ मेनी टेकीज. नाउ व्हेन आई से टेकीज, जरूरी नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही टेकीज है. टेकीज मतलब एनी कंपनी में जो टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन से जुड़ा आदमी, जो एक्चुअली प्रोडक्ट डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, उसको हम सिंप्लीफाई करके टेकीज बोलेंगे. क्योंकि क्या होता है कि मेरे पास ग्रेट आइडिया है बट देन मुझे तो मालूम ही नहीं कि आइडिया का मैं प्रोटोटाइप कैसे बनाऊं, मुझे मालूम ही नहीं क्या ये ऑपरेशंस में मैं क्या कैसे काम करूंगा. तो देन हु विल डू दैट? यू कैन नॉट आउटसोर्स द कोर एक्टिविटी ऑफ योर कंपनी. सो मेजोरिटी कंपनीज में ऐसा देखा गया है, स्पेशली स्टार्टअप कंपनीज में जो टेक ड्रिवन कंपनीज है. जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना रिसर्च आउटसोर्स नहीं कर सकती है प्राइमरीली, वैसे टेक्नोलॉजी कंपनी अपना कोर जो है टेक्नोलॉजी वो आउटसोर्स नहीं कर सकती. वो तो अपना इन हाउस होना चाहिए, कोर स्ट्रेंथ होना चाहिए. तो भाई आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है उसको लीड करने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए क्या आपके पास राइट लोग हैं कि नहीं है, यह होता है पहला सवाल. दूसरा सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो रेवेन्यू कहाँ से आएगा, कैश कहाँ से आएगा, पैसा कौन लेके आएगा. सब लोग इंजीनियर हैं, सब लोग बोलेंगे ग्रेट प्रोडक्ट बनाओ, तो फिर पैसा कहाँ से आएगा. So there should be someone also in the team जो बिजनेस डेवलपमेंट कर रहा है, सेल्स कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, ब्रांडिंग देख रहा है. तो ये भी एक कॉम्प्लीमेंट्री स्किल सेट वाली टीम होनी चाहिए. अभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास सब टीम मेंबर्स हर एक पहले के स्टेज से अवेलेबल ना हो, बट एटलीस्ट आपकी जर्नी में आपको ये प्लान करना जरूरी है कि एट व्हाट स्टेज यू विल कीप एडिंग दोस की क्रिटिकल स्किल सेट वाले गुड पीपल इन योर टीम सो दैट यू बिकम अ वेरी वेरी कोहेसिव अच्छी टीम. फिर जो सवाल आता है वो ये है कि व्हाट प्रोग्रेस हैव यू मेड इन द लास्ट 6 months. ये बहुत ट्रिकी सवाल है. आपको लगेगा कि यार ये सवाल में तो कुछ पूछा ही नहीं है कि रेवेन्यू कहाँ लाए, कितनी लेके आए हैं आप, कस्टमर्स क्या लेके आए हैं. बट इस सवाल का एक वैल्यू अलग है. सवाल है कि आपने पिछले 6 महीने में क्या किया है अबाउट दिस आइडिया. ये सवाल का जवाब बताएगा कि आप टॉपर हैं या डूअर हैं. काफी लोग आइडियाज के ऊपर बातें करने में, जैसे मैं बता रहा था, बहुत माहिर होते हैं. They can talk for hours about that idea, but they don't do anything about that idea. तो अब अगर 6 महीने तक कोई आइडिया के ऊपर सिर्फ बात ही कर रहे हैं
ओके, और आगे लेके नहीं जा सक रहे हैं, तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विथ यू, कि आप नहीं लेके जा सकेंगे, आपको कोई इनर्शिया है, आपके पास कुछ चैलेंजेस है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की समझ अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। तो आई थिंक आपको ये बताना जरूरी है क्या किया है आपने। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आपको 6 मंथ्स में ग्रोथ दिखाना बहुत जरूरी है। एंड इनिशियल स्टेज में अगर आप देखेंगे स्टार्टअप कंपनीज का ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल होता है, वो 10-15% ग्रोथ वाली स्टोरी नहीं होती है। यहाँ पे क्वार्टर एंड क्वार्टर ऑन ऑलमोस्ट 50 to 100% इवन मोर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी होती है। तो हमें जानना जरूरी होता है कि आपका ग्रोथ कैसे हो रहा है, आपने 2 क्वार्टर में क्या अचीव किया है, यू नो। तो ये 2 क्वार्टर आपका एक ट्रेजेक्टरी डिफाइन करता है कि आप कहाँ पे जा सकते हो। तो ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि ये ट्रैक्शन आप क्या जनरेट कर रहे हो। फिर आता है सवाल बिजनेस मॉडल के बारे में कि भाई व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन टू वैलिडेट द मार्केट, डू यू हैव अ रोबस्ट बिजनेस मॉडल। यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि भाई आपने ये सब डेवलप कर लिया, तो आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपने पेन पॉइंट डिफाइन किया है, टीम आ गई है, प्रोटोटाइप बन गया है, अभी एज अ बिजनेस आप कैसे रन करोगे। ये जो बिजनेस के जो ब्लॉक्स हैं इसके बारे में हम बात भी करेंगे। आई थिंक लास्ट सेशन was on business model canvas and I'll do a quick recap about that session also during this presentation so that एक कनेक्ट भी बैठे हमारा कि बिजनेस मॉडल का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। बिकॉज जैसे हम बता रहे थे कि यहाँ पे बहुत सारी बिजनेस जब भी डेवलप होगा नई नई चीजें भी हमें समझने में आएगी कि भाई सेल्स ग्रोथ कैसे बनाएंगे। अभी टेकी कैन नॉट से कि बस मैं तो यार टेकी हूँ तो मैं बिजनेस में आ गया, बट मुझे तो सेल्स समझ में नहीं आता है, मुझे ऑपरेशन समझ में नहीं आता है। तो उनको एक पूरा बिजनेस मॉडल ऐसे बनाना पड़ेगा जिसकी वजह से हर एक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बिजनेस आर क्लियरली डिफाइंड और उसके लिए एक प्लान ऑफ एक्शन रेडी हो। तो आई थिंक इसके ऊपर हम ज्यादा बात करेंगे बिजनेस मॉडल कैनवास में। मूविंग फॉरवर्ड, तो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज योर रेवेन्यू मॉडल एंड व्हाट इज मंथली ग्रोथ रेट। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आप पैसे कहाँ कमा रहे हो ना। यहाँ पे आप कितना कमा रहे हो वो भी पूछा जाएगा, बट अगर आप नहीं कमा रहे दैट इज परफेक्टली फाइन, बट एटलीस्ट यू शुड हैव क्लैरिटी अबाउट योर रेवेन्यू मॉडल। आप ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मैंने तो अभी एक एक सास प्रोडक्ट यूज किया, कोई टूल यूज किया है जो इनिशियली मैं फ्री में दे रहा हूँ जस्ट टू एक्वायर कस्टमर्स। आई हैव अ फ्रीमियम मॉडल। इन फ्रीमियम मॉडल में ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट फ्यू मंथ्स और ईयर्स you have no revenue or less revenue, and slowly when people start paying, तो फ्रीमियम मॉडल में इनिशियल स्टेज पे ऐसा हो सकता है यू डोंट गेट रेवेन्यू, बट एटलीस्ट यू शुड हैव क्लैरिटी अबाउट द रेवेन्यू मॉडल कि पैसा आएगा कहाँ से। ई कॉमर्स तो ट्रांजैक्शन से पैसा आएगा, सास सब्सक्रिप्शन से पैसा आएगा, एडवर्टाइजिंग से पैसा आएगा, कहाँ से पैसा आएगा। तो आपको क्लैरिटी होनी जरूरी है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 महीने की जो स्टोरी थी, तो अभी तो हो गया है कि 6 महीने की जगह मंथली ग्रोथ स्टोरी की लोगों बात करनी शुरू कर दिया कि भाई मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है। ओके, और जब हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ नीड नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू द रेवेन्यू, बिकॉज इनिशियल स्टेज पे रेवेन्यू कम होगी। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कस्टमर ग्रोथ की। जैसे आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियां अगर आप देखें इनिशियल स्टेज में दे मे नॉट हैव ग्रेट रेवेन्यू बट दे हैव अ ग्रेट कस्टमर एक्विजिशन नंबर्स। आप फेसबुक देखें, व्हाट्सएप देखें, बहुत सारे ऐसे नए वेंचर्स देखें तो वहां पे उनका कस्टमर एक्विजिशन बहुत फास्ट होता है, रेवेन्यू बहुत कम होता है, but at least customer acquisition gives you that power or that value that you are creating is that customer relationship that you can monetize at a later stage। तो ये एक बैलेंस भी होता है। तो आप अगर आपका ग्रोथ प्रोजेक्शन बता रहे हो तो अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ नहीं बता सकोगे तो एटलीस्ट आपको कस्टमर ग्रोथ की स्ट्रेटेजी बतानी ही पड़ेगी। तो ब्रॉडली अगर देखा जाए तो ये 10 सिंपल सवालों के पहले जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे। इसके लिए अगर आप रेडी हो तो देन यू आर रेडी टू टेक योर आइडिया फॉरवर्ड। जैसे मैं बता रहा था कि क्विक रिकैप करेंगे बिफोर आई गेट इनटू द आइडिया क्वोशंट मॉडल। हमने लास्ट टाइम जो बिजनेस मॉडल कैनवास किया था उसका एक क्विक रिकैप पहले करेंगे। जहाँ पे हमने बात की थी वैल्यू की। ओके, मैं क्विकली जाऊंगा बिकॉज काफी लोगों ने लास्ट टाइम ये अटेंड भी किया हो सकता है। तो हमने जैसे बात की भाई वैल्यू क्या है, प्राइस वैल्यू नहीं है, वैल्यू इज समथिंग जो आप कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कस्टमर बेनिफिट जो दे रहे हो वो वैल्यू है। फास्टर, चीपर, बेटर, बेटर क्वालिटी, कन्वीनियंस, एक्सपीरियंस, लाइफस्टाइल, ये सब वैल्यू है। ओके, एंड उसके लिए हमें ढूंढना है कस्टमर्स को क्या चाहिए। तो आई थिंक मैं बार बार अगर आपने देखा रहेगा आई गो बैक टू द पॉइंट ऑफ व्हाट कस्टमर्स वांट। आपको लगेगा यार स्टार्टअप आइडिया है यार, तो अंडरस्टैंड ये आइडिया का इंपॉर्टेंस, customers are using it। I think whatever you do, your focus should be
कस्टमर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन योर बिजनेस, आप वो फोकस लूज करोगे, आप बिजनेस लूज करोगे, तो आपको कस्टमर सेंट्रिक बहुत सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। ये मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, तो ये सब सवाल आप आराम से देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज कि व्हाट कस्टमर्स वांट, इसकी सिंपल क्लैरिटी आपको होनी बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम एक बिग पिक्चर भी आपके पास होना चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज बिजनेस एक क्लोज एनवायरनमेंट में ऑपरेट नहीं कर रहा है। बिजनेस बहुत ओपन डायनेमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट कर रहा है। जैसे हमने देखा एक हेल्थ पेंडेमिक अफेक्टिंग बिजनेस, किसी ने सोचा नहीं था, कोई प्लानर कोई स्ट्रेटेजिस्ट ने सोचा नहीं था, बट ये हो गया। तो ये तो एक फ्रीक केस, एक ब्लैक स्वान इवेंट है। बट अगर आप टिपिकली देखा जाए तो बिजनेसमैन को ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई ओवरऑल मार्केट डायनेमिक्स क्या है, कॉम्पिटिटर लैंडस्केप क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर क्या है, ट्रेंड्स कहाँ जा रहे हैं। तो ये सब जो ट्रिगर्स हैं उनकी समझ धीरे धीरे डेवलप करनी बहुत जरूरी हो जाती है, सो दैट आपका बिजनेस की समझ बेटर हो जाए। अभी बात करेंगे बिजनेस मॉडल क्या है। बहुत सिंपल है, आप हाउ डू यू क्रिएट, डिलीवर एंड कैप्चर वैल्यू इन योर बिजनेस। हाउ यू क्रिएट वैल्यू, डिलीवर वैल्यू एंड कैप्चर वैल्यू, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस मॉडल। और उसमें आई थिंक हमने जैसे लास्ट टाइम बात की थी कि भाई सेंटर में है हु इज योर टारगेट कस्टमर्स and what do you offer to those customers, how is the value proposition created and why is it profitable। इस सिंपल 3-4 सवाल के आप जवाब करेंगे तो आपको एक बिजनेस मॉडल की क्लैरिटी आना शुरू हो जाता है। एंड हमने लास्ट टाइम एक बिजनेस मॉडल कैनवास भी किया था। आई थिंक सुरभि कैन शेयर दैट शीट विथ यू गाइस सो दैट यू कैन स्टार्ट फिलिंग अप दैट बिजनेस मॉडल कैनवास, एंड अगर कुछ क्वेरीज है यू कैन कम बैक टू अस सो दैट वी कैन सॉल्व दैट। तो बेसिकली बिजनेस मॉडल कैनवास आपको एक ब्रॉड पिक्चर देता है कि भाई बिजनेस ऑपरेट कैसे कर रहा है और क्या की एलिमेंट्स है हर एक बिजनेस में। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग वैल्यू विच इज हाउ, डिलीवरिंग वैल्यू विच इज फॉर हुम, एंड देन कैप्चरिंग वैल्यू। तो ये आपका बिजनेस मॉडल कैनवास है। इंटरनल कंपोनेंट्स है अबाउट योर एक्टिविटीज, रिसोर्सेज, कॉस्ट एंड पार्टनर्स। एक्सटर्नल कंपोनेंट है आपकी कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर सेगमेंट्स, चैनल्स टू रीच आउट द कस्टमर्स, एंड आपके कोर में है वैल्यू प्रपोजिशन। ये बहुत सिंपल 1 पेज डॉक्यूमेंट है जो आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी ला सकता है अबाउट योर बिजनेस एंड अबाउट योर आइडिया। सो जैसे मैं बता रहा था कि 9 एलिमेंट्स और जो आपको डिफाइन करता है आपकी पूरी वैल्यू की प्रोसेस। एंड आई थिंक 2-3 आगे हैं जो मैंने ऑलरेडी शेयर किया था। आई क्विकली skip this part and I'll come to the today's main point is what is your idea quotient। ये आइडिया क्वोशंट क्या है। अराउंड 3-4 साल पहले मैंने जो एक बुक लिखी थी वहां पे मैंने ये मॉडल डेवलप करके आगे प्रोपोगेट किया था कि अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं है। इनफैक्ट आज भी हम बात कर रहे थे कि भाई नर्चर प्रोग्राम हो या वुमेन प्रोग्राम हो या कोई भी स्टार्टअप हमारे पास आए, हम कैसे इवेल्युएट करें यार ये अच्छा आइडिया है कि नहीं आया। बहुत सब्जेक्टिव है पूरी चीज, क्योंकि अगर मेरा मूड अच्छा है तो स्टार्टअप अच्छा है, या मुझे स्टार्टअप फाउंडर का फेस अच्छा लगा तो अच्छा आइडिया है, नहीं लगा तो बुरा आइडिया है। ओके, so now there cannot be this kind of subjective way to evaluate an idea. There should be a formal structured mechanism to evaluate an idea. So is there any media format available? पैसा तुम्हारे पे लेती नहीं दे। So कुछ मॉडल्स अभी तक फॉर्मल मॉडल तो इतने अवेलेबल नहीं है, बट यस सबका एक अलग अलग तरीका होता है आइडिया इवेल्युएट करने का। तो मैंने अपना एक खुद का तरीका बनाया है विच आई कॉल इट एन आइडिया क्वोशंट। तो ये आइडिया क्वोशंट है क्या, लेट मी कम टू यू दैट। तो ये आइडिया क्वोशंट में ब्रॉडली हमने 5 चीजों को डिफाइन किया है। सो यू आंसर दिस 5 क्वेश्चंस और यू इवेल्युएट आइडिया बेस्ड ऑन दिस 5 पैरामीटर्स। एक्चुअली देयर आर प्राइमरली 4 पैरामीटर्स, the 5th one which I call it the X factor, which I'll explain later. But first let's come to these 4 important parameters on which any idea, any startup idea, any business idea can be evaluated. What are those 4 quotient? 1, innovation quotient, value quotient, market quotient, and profitability quotient. Let me explain each of these quotient one by one. First, let's talk about innovation quotient. I think it's a simple notion that any startup idea should be an innovative idea. Now यहाँ पे काफी लोगों को confusion हो जाता है, यार innovation मतलब क्या, product innovation? मैं तो यार कुछ खुद बना ही नहीं सकता हूँ, तो मैं product innovation कैसे करूँगा? But if you see,
On the other hand, very, very successful startups in India typically, those are all Me Too products. अगर आप फ्लिपकार्ट बात कर ले, उसने अमेजोन की कॉपी कर ली थी. पेटीएम की बात करें तो उसने पेपैल की भी कॉपी की थी. ओला की बात करें तो उसने उबर की कॉपी की. तो हम सोचे यार इसमें तो क्या इनोवेशन है, उन्होंने तो सब कॉपी किया हुआ है. बट अगर आप ध्यान से देखें, ठीक से देखें, तो उनके एग्जीक्यूशन में कुछ ना कुछ इनोवेशन था. तो इनोवेशन इज नॉट नेसेसरली शुड बी प्रोडक्ट इनोवेशन. एक नई जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नहीं है ऐसी चीज मार्केट में लाना इनोवेशन डेफिनेटली है, बट सिर्फ वो इनोवेशन है ऐसा जरूरी नहीं है. इनोवेशन हो सकता है इन योर मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, इनोवेशन हो सकता है इन योर डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस, इनोवेशन हो सकता है इन योर सप्लाई चेन, इन योर ऑपरेशंस. इनोवेशन इन योर बिजनेस प्रोसेसेस आर मल्टीफोल्ड. यू नीड टू फाइंड आउट कि आप कैसे इनोवेट कर रहे हो. जैसे मैं ऑलवेज एग्जांपल देता हूँ फ्लिपकार्ट का, कि भाई उसने इनोवेशन किया to expand the market, especially the rural market in India, by offering cash on delivery very, very successfully. Okay, अभी सवाल ये आता था यार, फेसबुक ने तो बहुत फ्लिपकार्ट ने तो बहुत बढ़िया तरीके से कर दिया, बट अगर आप देखोगे तो इवन ये इनोवेशन भी उसका खुद का नहीं था. 20 साल पहले और कोई कंपनी ने, इंडिया करके जो कंपनी थी, उसने ये कैश ऑन डिलीवरी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था इन 2001, बट अनफॉर्चुनेटली वो ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर सके. दैट मीन्स कि फ्लिपकार्ट ने एक अच्छे आइडिया को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया, वो भी एक इनोवेशन है. तो आपको इनोवेशन को देखने का तरीका थोड़ा चेंज करना चाहिए और आपको सोचना चाहिए कि आपका आइडिया कैसे डिफरेंट है, दूसरे लोगों से क्या यूनिक ऑफरिंग दे रहा है, क्या यूनिक बेनिफिट ऑफर कर रहा है आपको. तो इनोवेशन को एक अलग तरीके से देखना जरूरी हो जाता है जब भी आप आइडिया एवेल्यूएट करें. कंप्लीट मी टू आइडिया को बहुत चैलेंज हो जाती है. मी टू आइडिया को भी फंडिंग मिलता है, मी टू आइडिया भी सक्सेसफुल होते हैं, उसके अलग रीजन है. काफी बार रीजन हो जाते हैं कि उस ग्रेट फाउंडिंग टीम होती है, उनको राइट टाइम पर रिसोर्स मिल जाते हैं, तो अलग रीजन है. बट ये बेसिक टेनेंट है. ये इनोवेशन क्वोशंट अगर आपका हाई है तो इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. दूसरा जो आपका क्वोशंट आता है आइडिया क्वोशंट इज वैल्यू क्वोशंट. हमने जैसे आगे बात की कि वैल्यू इज समथिंग विच वी नीड टू लुक एट वेरी वेरी केयरफुल इन आवर बिजनेस, कि हम क्या बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं और वो बेनिफिट कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस रखता है. ओके, अगर आपका वो वैल्यू क्वोशंट हाई है, जो भी हम लोग एग्जांपल से बात कर रहे थे, तो अगर वो वैल्यू क्वोशंट हाई है, आपका बेनिफिट क्वोशंट हाई है, एक्चुअली कोई पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई बेटर तरीके से कर रहे हैं, फास्टर तरीके से कर रहे हैं, बेटर क्वालिटी एट अ लोअर कॉस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो वैल्यू प्रोपोजिशन आप टेबल पे ला रहे हो. तो ये अगर आप अलग हैं दूसरे लोगों से, तो अगर आपका वैल्यू क्वोशंट हाई है तो आपके आइडिया का थोड़ा वेटेज बढ़ सकता है. ये हो गया वैल्यू क्वोशंट. थर्ड आपका आता है मार्केट क्वोशंट. नाउ यहाँ पे ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि आपके पास ग्रेट इनोवेटिव प्रोडक्ट है, इट ऑफर्स फैंटास्टिक वैल्यू आल्सो, बट वो प्रोडक्ट ऐसे कस्टमर सेगमेंट के लिए है कि वो कस्टमर सेगमेंट ही इतना छोटा है, तो आपके बिजनेस की ओवरऑल एक लिमिट बन जाती है. तो उसके लिए आपको देखना है कि भाई ये जो मैं प्रोडक्ट ला रहा हूँ मार्केट में, वो मार्केट कितना बड़ा है. इज दिस आइडिया स्केलेबल इनफ कि जो बड़ा हो सके. तो उसके लिए आपको इवेल्युएट करना है कि मार्केट क्वोशंट क्या है. तभी आपको ढूंढना है कि भाई मैं कौन से कस्टमर सेगमेंट को एड्रेस कर रहा हूँ, क्या मैं कस्टमर सेगमेंट में और कस्टमर सेगमेंट ऐड कर सकूंगा, कैसे कर सकूंगा, कैसे एक्सरसाइज उनको एक्सपांड कर सकूंगा वो मार्केट, क्या अलग अलग प्रोडक्ट से सिमिलर कैटेगरीज में उनको देख के मैं एक्सपांड कर सकूंगा. तो आपका मार्केट क्वोशंट, बिकॉज बिगर द पाई, ओके, देयर इज अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ योर पॉसिबल ग्रोथ. तो इसके लिए आपका मार्केट क्वोशंट शुड बी वेरी वेरी हाई. फॉर एग्जांपल एक जो स्टार्टअप है, तो वो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट डेवलप की फॉर ब्लाइंड पीपल. दे हैव डेवलप्ड प्रोडक्ट कॉल्ड टॉर्च इट. ब्लाइंड लोग जब भी चलते हैं तो उनको सिर्फ वो स्टिक से नीचे की जमीन पता चलती है, बट ऊपर की पेरिफेरी का एरिया पता नहीं चलता है, तो उनको हर्ट होने की पॉसिबिलिटी है. तो उन्होंने एक अच्छी डिवाइस की कि उनको आजू बाजू का भी पेरिफेरल एरिया का भी उसको सेंस हो जाए. नाउ इनोवेटिव प्रोडक्ट है, जो यूजर है उनके लिए वैल्यू भी क्रिएट कर रही है, वो प्रोडक्ट का लिमिटेशन है, इट इज ओनली फॉर ब्लाइंड पीपल. अगर ऐसा मेरा बिजनेस का आइडिया है तो मेरा सोचने का तरीका अबाउट दैट बिजनेस शुड आल्सो बी वेरी वेरी डिफरेंट.
उसको मैं एकदम कंप्लीटली मार्केटिंग कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख सकूंगा, बिकॉज मेरा कस्टमर सेगमेंट इज लिमिटेड टू नंबर ऑफ ब्लाइंड पीपल इन द वर्ल्ड। तो ये मेरा लिमिटेशन हो जाता है। सिमिलरली आपको भी देखना है कि भाई आप किस तरीके से आपको लिमिट कर रहे हैं, या वो आप एक अनलिमिटेड मार्केट को केटर कर रहे हैं। तो आपका मार्केट क्वेश्चन बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिगर द मार्केट पाई, better the chances of growth. And finally is profitability quotient. So when I added this fourth quotient in the idea quotient tool, lot of people, those 3-4 years back question कि यार profitability भी कौन बात करता है startup में? Thankfully, I think pandemic के बाद everyone is talking about profitability. Because gone are the days where I can say कि अरे बस प्रॉफिट जाने दो यार, मैं तो ग्रोथ कर रहा हूँ, मैं तो कस्टमर एक्वायर कर रहा हूँ, प्रॉफिट बाद में देखेंगे, वैल्यूएशन पे खिलेंगे. Now that is gone. Why? Because ultimately, whether it's startup or any kind of business, a startup is also ultimately a business. And वो मैनेजमेंट गुरु जो कहते हैं कि भाई प्रॉफिट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं आपके बिजनेस में, तो देयर इज नो पॉइंट स्टार्टिंग अ बिजनेस. तो आपका अगर वेंचर है और वो प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है, तो कोई फायदा नहीं है. तो आई थिंक यहाँ पे, especially in today's environment, this has become a kind of a buzzword. Are you profitable or not? अभी आपको देखना है कि भाई हो सकता है कि इनिशियल ईयर्स में आप लॉसेस कर रहे हैं, बट वेदर यू विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट, और व्हाट स्टेज. अगर आप पहले दिन से प्रॉफिटेबल है, जो काफी कंपनियां ऑलरेडी हैं. मैं सूरत में एक कंपनी को मिला हूँ कुछ 4-5 महीने पहले. So in the third month of operation, they were highly profitable and they were into a B2B e-commerce space. I'll not name the company, but then I was very surprised. Now that is something which investor will jump to. So आपको वो दिन पहले दिन से सोचना है कि प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे है. अभी आपके पास सवाल आएगा कि यार Amazon तो अभी भी लॉस कर रहा है, हम तो पेपर में रोज पढ़ते हैं सब लॉस कर रहे हैं. Now that's a completely different ball game, जो एक अलग तरीके से सोचा जाता है कि जब भी वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को एक्वायर करेगा तो वो प्रॉफिट के लिए एक्वायर नहीं करेगा, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट. तो वो एक अलग गेम है, वो अलग तरीके से खेली जाती है. बट व्हाटएवर लॉजिक आप डालें, प्रॉफिटेबिलिटी विल स्टिल रिमेन अ वेरी वेरी कोर पर्पस ऑफ डूइंग एनी बिजनेस. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना और कितनी जल्दी हम वो स्टेज पे पहुंचे, वो डिफाइन करना जरूरी हो जाता है. तो ब्रॉडली अगर आप देखें, आइडिया क्वोशंट, वैल्यू क्वोशंट, मार्केट क्वोशंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्वोशंट, अगर आप ये 4 एंगल से आपको आइडिया को देखें, तो आपको ही स्लोली क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी कि मेरे आइडिया को मैं कैसे बेटर बना सकता हूँ, कैसे उसमें एक अच्छा इनोवेशन ऐड कर सकता हूँ फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्या वैल्यू एडिशन और मैं ला सकता हूँ, या कैसे मैं मेरा मार्केट एक्सपांड कर सकता हूँ और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी कर सकता हूँ. तो ये कोर 4 फैक्टर्स हैं. जैसे मैंने बताया, the fifth factor which I call it the X factor, because business है and there are always uncontrolled factors in any business. सबसे important जो फैक्टर वो है टाइमिंग. आई थिंक हमारे पास इतनी सारे एग्जांपल्स हैं ऑफ ग्रेट आइडिया ब्रिंगिंग ग्रेट वैल्यू टू द ग्रेट मार्केट, बट नो प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज रॉन्ग टाइमिंग. इंडिया में जो स्पेशली जो फर्स्ट वेव ऑफ जो इंटरनेट ई कॉमर्स का जो वेव था 2000-2001 में, वहाँ पे क्या हमारे पास अच्छे फाउंडर्स नहीं थे? क्या वो फाउंडर्स के पास अच्छे आइडियाज नहीं थे? डेफिनेटली थे, बट वहाँ पे इंडिया में इंटरनेट ही नहीं था. सो 2000-2001 में इंटरनेट ही नहीं था. हमारे पास ई कॉमर्स कंपनियां आ गई थी, बट क्रेडिट कार्ड्स ही नहीं थे. ओके, नेटफ्लिक्स इंडिया में इतना एक्सेप्टेंस आ गया बिकॉज जियो ने ब्रॉडबैंड ऐड कर दिया. मतलब तो ये टाइमिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो आपको भी ये 5th फैक्टर, द एक्स फैक्टर, ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं राइट टाइम पे मार्केट को हिट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. अगर आप देखें, क्या उबर के पहले दुनिया में कोई भी टैक्सी सर्विसेज कंपनी नहीं थी? बहुत सारी थी. बट व्हेन उबर वाज लॉन्च, एप्पल ने अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया तो उबर ऐप आ गई, तो टाइमिंग वाज राइट. ओके, तो आपको टाइम करना बहुत जरूरी है. एट द सेम टाइम यहाँ पे एक चीज है कि यार ये पैंडेमिक, ये रिसेशन, क्या राइट टाइम है टू लॉन्च अ स्टार्टअप? यस एंड नो. यस, व्हाई? बिकॉज ऐसे टाइम पे अलग अपॉर्चुनिटीज आती है. आप देखेंगे एयरबीएनबी, तो उसने यही टाइम पे 2008 में किया था.
peak of a recession, but it could scale up very fast. Why? Because recession में सबको अपने घर के ऊपर जो एक एक्स्ट्रा बेड था वो भाड़े पे देके पैसा कमाना था, बिकॉज उनकी लाइबिलिटीज ज्यादा होती और रेवेन्यू कम हो गई थी रिसेशन की वजह से। एयरबीएनबी को वो रिसेशन का फायदा हुआ एंड देन दे टुक दैट एडवांटेज इन वो आइडिया को आके लेके गए। तो सिमिलरली आपको भी देखना है कि भाई करंट एनवायरनमेंट में मैं मेरे आइडिया का बेस्ट कैसे यूज कर सकता हूँ, और क्या ये राइट टाइम है या नहीं है, क्या मुझे आइडिया को आगे लेके जाने के लिए जो चीजें जरूरी है वो क्या ऑलरेडी अवेलेबल है कि नहीं है, जो मार्केट को केटर कर रहा हूँ। आई थिंक ये एक्स फैक्टर्स बिकम्स अ वेरी वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, और ये एक्स फैक्टर का कोई सीधा जवाब नहीं है। आप इनोवेशन को, वैल्यू को, मार्केट को, प्रॉफिटेबिलिटी को एक क्वांटिफाइबल मेजर कर सकते हो, बट ये एक्स फैक्टर को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। एंड दैट इज द रीजन बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स, टॉप ऑफ द क्लास स्टार्टअप फाउंडर्स, दे विल ऑलवेज से कि बॉस हम आइडिया इतनी अच्छी तरह से जज नहीं कर सकते, एट द मोस्ट बता सकेंगे क्या हो सकता है। So that's why this is not a perfect science, okay, but it will give you few triggers, it will give you a certain direction यार हमें किस तरीके से सोचना चाहिए, because अगर सोच अच्छी है तो आई एम श्योर उसके सोल्यूशन के बाद हम जा सकते हैं। So finally मैं एक ही चीज कहूंगा, an idea that is developed and put into action is more important than an idea that exists only as an idea। I think ये सबसे important चीज है, आइडिया को सिर्फ आइडिया मत रहने दो, आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप्स उठाने बहुत जरूरी हो जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई मेक आइडियाज हैपन। उसमें फाइनली मेरा एक सिंपल 3 पॉइंट फॉर्मूला रहता है कि भाई अगर आपके पास ये 3 में से 2 चीज हैं तो तीसरी चीज लाने की जवाबदारी मैं ले सकता हूँ या हेल्प कर सकता हूँ। क्या है वो 3 चीज? क्या है वो 3 चीज जो एक आइडिया को आगे लेके जाने में हेल्प कर सके? 1, do you have a great idea? 2, do you have great team? 3, do you have the right resources? So now if you see, if you have any 2 of this, I can get you the third one. How? If you have a great idea and a great team, I am sure you'll get right kind of resources, investment, everything to take that idea forward. If you have great idea and enough resources, then I am sure you can build the amazing team to take that idea forward. If you have a great team and you have resources, I am sure you'll look at the market, you'll look at the opportunities and you'll find a great idea. ये 3 में से 2 चीज है, then you can make ideas happen. Thank you so much, guys. Thank you so much, Kashyap bhai. It was an amazing presentation and I got to learn a lot, many things from your presentation today. Let us take questions in the group. There's so many things going on in the chat box. Just one thing, Surbi. Yeah. I think there is one more slide about TiE Nurture, and I think Jitendra ji is also there with us today. So I think let's kind of formally inform others also. So I think Sanjay bhai and Jitendra ji can talk about Nurture a bit, because I think this is a very very initiative that I think TiE is taking. So Sanjay bhai and Jitendra ji, over to you. Please welcome Sanjay bhai and Jitendra. Yeah. Thank you so much, Kashyap ji. I think this was wonderful session, and I can of course talk about Nurture, but I want really the team Surat to take care of it. I'll be behind you. I'll be supporting you, not pushing you. So over to you, Sanjay ji or Kashyap ji. Please go ahead. Kashyap bhai, તમે જ આગળ કરો, please. So I think as Sanjay bhai mentioned earlier in his opening remarks, that TiE Surat, in association with TiE Pune, TiE Hubli and TiE Nagpur, is coming up with a very very interesting program called TiE Surat Nurture 1.0. This is the first edition of Nurture program. Now this Nurture Accelerator is a structured 8 to 9 month program for primarily startup founders and entrepreneurs, to help them with mentoring and other support. So there are 4 pillars of this Nurture program: globality, the strategy around it, leadership and business ethics. So this program will help you, take your idea forward. The mentors will handhold you and help you shape that idea forward, and
then in that entire journey of 8 to 9 months, you will come out with a better idea, and you'll also, as a person also, I'm sure you'll emerge as a better founder, better entrepreneur. So this is an amazing initiative. I think we are so thankful to TiE Pune, because I think last year for Nurture 8.0. So by the way, friends, TiE Pune has been running this program for almost 8 years now. This is the 9th year, and they'll be launching Nurture 9.0. And along with them, we'll be launching our own Nurture 1.0. I think in last 8-9 years, TiE Pune has many successful stories that has come out of Nurture program. There are startups who have reached national and global heights, startups from the program, Nurture program, who managed to raise funds in the tunes of 100 crores, a multiple round of, I would say, 100 crores. So I think it's a very successfully run program by TiE Pune, and we are thankful to TiE Pune because they are handholding us, TiE Surat team, to roll out Nurture program for Surat entrepreneurs, and this will be rolling out soon. I think details will be available to all of you in very short time, and we'll also start inviting entries. So please keep following TiE Surat Facebook pages and everything. So we'll keep updating you about the program. It's an amazing program. And I think Surat is fortunate that we are going to roll out this program with the help of TiE Pune, and they are fully supporting us. So thank you so much, Jitendra ji, Ravi ji, Vineet, and entire TiE team. So I think now we can open up for question and answer. And Kashyap ji, just to add one statement, you said rightly, I think you covered everything what I wanted to say, and thank you for that. I think the one statement which I say, અને હું ગુજરાતી છું એટલે ગુજરાતીમાં વાત કરું તો ચાલશે, લોકોને પણ ગમશે. બેસિકલી એક વસ્તુ મેં જોઈ છે કે દોડતા તો બધાને આવડે છે, ધંધો કરતા બધાને આવડે છે, ગુજરાતીઓના તો બ્લડમાં છે ધંધો કરવો, રાઈટ? બટ જ્યારે એને ધંધાને મલ્ટી લેવલ સ્કેલ પર લઈ જવું હોય ને, ત્યારે કોઈ એક મેન્ટર જોઈએ, ત્યારે કોઈ ગાઈડન્સ જોઈએ, એક ડિરેક્શન જોઈએ, રાઈટ? એક્ટર્સ એક્ટિંગ ત્યારે કરી શકશે જ્યારે ડિરેક્ટર હશે. નહીં તો એક્ટર જે આજે આપણે બધા બચ્ચનને ને બધાને સેલ્યુટ કરીએ છીએ, એ બધા કોઈ આગળ નથી આવવાના. So I think that's the reason, that's the way to look at it. That there has to be somebody who can show you the path, somebody who can show you the vision, somebody who can show you the big picture, right? It's just giving you that perception કે તમે પણ ફ્લિપકાર્ટ કે એમેઝોન કે પેટીએમ બનાવી શકો છો. I think that is the best way. Dream big, right? And that's where Nurture program can really help you. That's where globality, strategic leadership, and business ethics all comes into picture. So thank you, and looking forward to Surat working with each one of you and having more and more good companies to nurture. Thank you very much. 2 points I wanted to add. TiE is a not-for-profit organization, and number 2, there is no charge for the Nurture. So we are providing the mentorship to all startups without any cost, and this is very important for all of us to know about. So no cost and no equity also, I would suppose, right? Give me number. Hello. Yeah. Hello. Hello, Kashyap bhai. Yes. This is Rupal Shah from Navsari. I wanted to ask you one question. Yes. One thing is that as you said, that some people must be having great ideas, great team, everything. But what the major problem they are facing is everybody is not having good resources or good financial support. And one thing I have seen that many times we see government is giving so much support and schemes is available and everything, but it is just, I can't say it is on paper, but the thing is for every person, it is not easy to go till that. So how they can go ahead in this situation? Right. I think this is one question that I think I'm sure everyone is facing. कि यार पैसा क्यांथी आवड़શે? Idea तो છે મારી પાસે, but where is the money? I think this is a very challenging question, and I think so there is no easy answer to this. That is one. Two. Hello. મારે આમાં બોલવું છે. I think just a minute. Request all the audiences to please put questions in the chat box only, and I will request those to please mute all, or you can raise hand also. अगर आपके question
ऐसे कुछ होंगे जिसमें हम आपको इनवाइट कर सकते हैं, तो वी विल डेफिनेटली इनवाइट यू फॉर द डिस्कशन, बट ड्यू टू वी आर हैविंग वेरी लिमिटेड time and we want to give opportunity for all the questions, so let's make it a habit कि हम लोग chat box में questions डालें. So Rupal ji का एक question आया, Kashyap bhai, you can continue so with I'll that. just so I think, as I was saying, there is no easy answer, there is no straightforward answer. How do you raise funds? There is no, yes, there are angel networks, there are, there are formal networks available to fund you, but early stage ideas, because what I understand from Rupal ji is what we do if I have a very, very early stage idea or idea stage, how do I raise fund? Or even if I develop certain idea and reach certain stage, how do you raise funds? I think fundraising is always tricky. One, my observation is you cannot always depend on government, because we have not seen many startups who have taken government benefit and then they have, kind of succeeded in life. So I think government, though they have good intention, but the expectation should not be that high as far as government is concerned. Now coming back to the resources part, how do you raise funds? I think there is always kind of एक जो हमारे जोक है कि भाई इनिशियल स्टेज पे पैसा कौन देगा, तो 3 F's, फ्रेंड्स, फैमिली एंड फूल्स. तो आई थिंक ये स्टेज पे, तो जो अभी आइडिया स्टेज पे एनी स्टार्टअप इज देयर, so I think you have to manage resources somewhere on your own to reach a stage which is kind of a minimum viable product stage, some traction, some potential in that idea, and then you can start engaging with right kind of people who will support that idea. So there is no easy answer. Unfortunately, in cities like Surat and South Gujarat, because the startup ecosystem is not that well developed, we don't have a very, very many formal angel groups, not very active angel investors who participate in startup idea regularly. So we always face challenge compared to cities like Pune and Bangalore, which is much evolved startup ecosystem. So this question is very, very valid, but there is no easy answer. Maybe Jitendra ji can add to it. Yeah, I was about to say that early stage startup mate, if you have a wonderful idea, there is one VC funding which is only focusing on early stage. Just to give you a perspective, and Surabhi, you might have met this person, Sanjay Mehta from 100x.vc. Yes, we met. The first VC, this is the first VC to invest in early stage startup using India Safe Notes. So just in case if anybody is interested in early stage, you can always go to 100xvc.com and you'll be able to find that. If you need connect, probably Try Surat can get connected, or we can help you to get connected with them. Thank you Kashyap bhai and Jitendra ji. So आप सभी से ऑडियंस में मेरा रिक्वेस्ट है कि लैंग्वेज कोई भी बैरियर नहीं है, आप गुजराती और हिंदी में भी आपके क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स में, एंड वी विल डेफिनेटली आंसर ऑल द क्वेश्चंस. सो काफी सारे क्वेश्चंस इस पे आए हैं कश्यप भाई, मैं मिक्स रखती हूँ लैंग्वेज. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आर लाइक हाउ टू फाइंड अ को-फाउंडर. So I would request you and Jitendra ji to please highlight what kind of programs are there in TIE as a global that those are getting conducted, so that we can find a co-founder, maybe founders meet or kind of thing. If you can please highlight. Right. So I think before Jitendra ji come in, because I think he'll better equipped to answer this question, but I'll just add my 2 bits. So one thing, see, finding a co-founder is very tricky. It's like finding your life partner. And mind you, divorce करना is easy, but अगर business partnership अगर mess up हो गई तो वो जानना उससे बहुत बुरा होता है. I think we have to take this co-founder or partner thing very, very seriously. Okay, that is one point. So it's not very easy that you just find. There is no jeevansathi.com available for co-founders as of now. Okay, but interestingly, if you see, for example, in Bombay, I think in Powai, someone is running a co-founders lab. Where they on a regular basis, few startup founders gather and then they discuss those ideas and then they try to find क्या complementary skill set वाला कोई co-founder मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ऐसे informal groups certain cities में already है. Okay, so आप उनके साथ engage कर सकते हैं, but as I told you कि ये तो partner ढूंढने जैसी चीज है, because सिर्फ skill set अच्छा है करके मैं जोड़ नहीं सकता हूँ. सिर्फ just because मेरी frequency match हो रही है चलो साथ में आ जाते हैं, वो भी नहीं है. तो there are multiple criteria जो आपको evaluate करना रहता है before you actually decide to have a co-founder. Also, I think जो हम always insist करते हैं कि there should be a founders agreement also. There should be clarity about
what role each of these co-founders is playing. Because जैसे मैं अभी बता रहा था, just because हम दोनों दोस्त थे और engineer हैं और computer engineer है, कुछ बना दिया और company शुरू कर दी, after 3 years we'll start fighting. यार तू क्या कर रहा है कंपनी में, मैं ही सब कर रहा हूँ. You know, now that is a very, I think I am sure we all have experience in seeing this kind of scenarios. So I think वो clarity about कि किसका क्या role रहेगा, and based on that you get co-founders. So no easy answer, especially in Surat. I am not aware any co-founders lab है, but yes, you know, we are working on it. But I think right now अभी वो market ही जो नहीं हुआ है कि वहाँ पे ऐसी activities को support मिल सके. Jitendra ji, would you like to add here? I completely agree with you. I think only one thing which I say कि जो networking का opportunity जब भी मिलता है, right? Whether it's through some forum like TIE or any other, doesn't really matter. It can't be just TIE. But if there is a NASCOM event, if there is any kind of a association event, anything, please grab the opportunity to network with people. Because in current world, your network is your real net worth, not money. Okay. So if you are able to create the network by virtue of, let's say, for example, because you know, let's say Kashyap, now Kashyap knows somebody else who is looking for a founder or co-founder who is in an IT technology area, and now you are looking for somebody who is in technology area because you are a business person, or vice versa. I think that networking, and so once it comes from, let's say, somebody whom you know well, for example, let's say if it is coming from Kashyap, you know that this person is a genuine person, right? That's a So finding co-founder is not necessarily an easy answer, agreed. But same time, अगर networking करते रहोगे, chances are कि आपको अच्छा co-founder मिलेगा first. And second, Kashyap ji brought up a very important aspect of it. Even if you are having a partnership with your wife, okay, खुद की पत्नी के साथ भी अगर partnership कर रहे हो, my suggestion is have founders agreement. This is very, very critical part, because tomorrow you never know what will be the situation. Today you are aware that a lot of businesses, including Birlas of the world, are fighting for their wealth and all their businesses and everything else. And one of the core reason is they have got the equity and everything lined up, but unfortunately whatever hereditary से जो आया है, right, second generation, third generation से, उनका clarity नहीं है, founders agreement नहीं है, and that's where it creates a challenge. So that is a very important aspect. Each one of us, generally Gujaratis में दो साथ में मिल गए, चलो partnership कर देते 50-50%. This is how it starts. And I am Gujarati, so I can अपने कौम को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ. तो वो जरूरी है कि उसमें रखो कि 50-50% is fine, but अगर मुझे बाहर निकलना है तो क्या करना है, या आपको बाहर निकलना है तो क्या करना है. I think ये बहुत critical है. फिर उसके बाद तुम अगर अनजान लोगों से भी partnership करोगे तो प्रॉब्लम होने का चांसेस कम हो जाता है. So that's my recommendation. But networking is the only solution. There is no other right or wrong. There is no three-step process, unfortunately. Thank you, Kashyap bhai and Jitendra ji. There's next question from Prakash Jetwani ji. Prakash ji, but आपका question इतना clear नहीं हो रहा है कि आपने exact किस point पे पूछा था. Can share example of service industry and finance services. तो वो आपने किस point पे पूछा था? अगर आप उसको elaborate कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा. Till the time I will go to the next question. So PPTs and recording के लिए जितने लोगों ने demand की है, Facebook TIE सूरत page है, वहाँ पे ये session live था. So you will be able to see the recordings. Next question is from, yeah, hello. मेरा जो क्वेश्चन था, जो हम लोग फाइनेंशियल फील्ड में है, तो वहाँ कैसे इनोवेशन कर सकते हैं सर्विस इंडस्ट्री में? मैं प्रकाश जी आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ ना, आपकी इंडस्ट्री का एग्जांपल अगर मैं दूं, आपको पता है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड है यार, उसमें क्या इनोवेशन करें, तो हम अपने सूरत का ही एग्जांपल देते हैं. एनजे फाइनेंस, तभी फाइनेंस व्हेन दे केम इनटू द मार्केट, आपको भी मालूम है कि म्यूचुअल फंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, राइट? एंड एनजे केम अप विद कंप्लीटली अ डिस्ट्रीब्यूशन ड्रिवन म्यूचुअल फंड सेलिंग, एंड टुडे दे आर बिगर देन एचडीएफसी इन द म्यूचुअल फंड स्पेस. So now that is called, I call it innovation. So I think हर एक फील्ड में इनोवेशन की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए. वो डिपेंड करता है आपको, आपके बिजनेस की कितनी क्लैरिटी जब ये आती है कि आपका कोर बिजनेस का कोर वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, तो आई एम श्योर यू विल फाइंड अ वे. Thank you, Prakash ji and Kashyap ji. So next is a question from Mr. Rajiv Bali. He is asking, you have an innovative idea, but if you try to discuss with others, you give idea to others and lose out on the novelty.
it might be taken up faster than you can action it, maybe because of financing, and you lose out on the first mover advantage. So how does anyone tackle such situation? So I think I'll have very simple answer I'll give you. So I think I was in a .com in 2000, 2001. Okay, I was working in .com. I remember whenever we initiate any discussion with potential supplier and vendor, पहले हम वो NDA भेजते थे, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट. यार अपना आइडिया है, कोई चोरी कर लेगा तो क्या होगा, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन 4 डिफरेंट बिजनेस आइडियाज. आई रिमेम्बर 2 साल में मैंने अभी तक एनडीए के बारे में एक भी मेल भी मुझे आया है. And I am sure Jitendra ji will agree to that. Now we discuss ideas sitting in a Starbucks in Bombay and other parts of the country. Idea itself has no intrinsic economic value. Idea has zero value. Idea acquires value when it is successfully transformed into a business concept, implemented. I think ये जो misconception है startup founders को कि मेरे पास great idea है तो इसके लिए मैं great हूँ, ये आई थिंक वो मिसकंसेप्शन निकाल देना चाहिए. आइडिया की वैल्यू नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन की वैल्यू. तो अभी सवाल ये आएगा कि हाँ यार मेरा आइडिया वो लेके जल्दी इम्प्लीमेंट कर देगा तो क्या. तो आई थिंक सी इन दैट केस एनीवे वो होना ही है. अगर आप लॉन्च भी लॉन्च करोगे अल्टीमेटली तो आप पूरी जिंदगी छाती पे रखिए तो आगे नहीं बढ़ सकोगे. सम पॉइंट ऑफ टाइम यू आर गोइंग टू लॉन्च दैट आइडिया. द मोमेंट यू लॉन्च दैट आइडिया दैट मींस योर आइडिया इज आउट इन द मार्केट. तो जो कॉपी करने वाले हैं, फास्टर कॉपी करने वाले हैं, बेटर कॉपी करने वाले हैं, वो आपसे एनीवे आगे जाने वाले हैं. Amazon was not the first bookstore in the world. Okay, we all know that, right? It is कि ये जो about आइडिया चोरी हो जाएगा, गलतफहमी निकाल देनी चाहिए. We should be very confident about what we are offering. Certain जो जो proprietary business practices या unique offering है, that cannot be revealed very easily to. Broadly, you need to discuss ideas because अगर validate भी करना है आइडिया तो मुझे बताना तो पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी मेरे कस्टमर्स के साथ कि यार ऐसे कुछ आइडिया है, आपको कुछ इसकी वैल्यू है कि नहीं है. वो अगर आप बात ही नहीं करोगे, आपके ही दिमाग में आइडिया बनाया, आपके ही दिमाग में वैल्यूएशन बनाया, तो फिर आपके दिमाग में वैल्यूएशन भी बना दिया और उसकी कुछ वैल्यू भी नहीं है. तो आई थिंक वो अभी हटा देना चाहिए. और आई थिंक ये प्लेटफॉर्म पे भी आपको आइडिया सजेस्ट करना चाहिए. इनफैक्ट आई थिंक सुरभि के साथ हम वही बात कर रहे थे. The whole objective of doing this series of webinars for Thai women and Thai nurture is share your ideas. We are there. We have people like Jitendra ji with us. He can give you a lot of insight about your ideas. Okay, I think this is exchange of ideas. आपकी idea की overall quality will improve when you discuss idea. मतलब अगर मेरे पास एक idea है और सुरभि के पास idea है, okay, समझो कि मेरे पास एक फोन है और वो फोन मैंने सुरभि को दो दिया तो मेरे पास 0 फोन है, सुरभि के पास 1 फोन. पर अगर हमने आइडिया का एक्सचेंज किया तो दोनों के पास 2 आइडिया है. आप समझे. तो ये आइडिया तो एक्सचेंज करने से उसका बेटर इंप्रूवमेंट होता है. तो आई थिंक ये निकाल देना चाहिए. जितेंद्र जी, वुड लाइक टू समथिंग. I just want to say one thing is कि अगर अपने को, and this is a disclaimer, please nobody takes it personally, okay? Personally कोई मत लेना. बट अगर अपने को लगता है कि हम ही दुनिया में एक स्मार्ट है और मेरे पास ही दुनिया का सबसे अच्छा आइडिया है, तो लेट मी टेल यू, एनी आइडिया विच यू आर थिंकिंग राइट नाउ, राइट, कहीं तो चाहे बैंगलोर में, चाहे दिल्ली में, चाहे चंडीगढ़ में, चाहे कहीं तो गुजरात के कोने में कोई और ये आइडिया सोच रहा है या तो आधा इंप्लीमेंट कर चुका है. पहले तो ये बहुत क्लियर दिमाग में रखो, your idea is not unique. What makes it unique is within that idea, do you have something which is USP, and वो USP को execute कैसे करोगे, जैसे कश्यप जी ने बताया. एक वो important बात है. दूसरी बात ये है कि end of the day आइडिया वो है जिसका कोई पैसा दे, राइट. मुझे बहुत साल पहले आइडिया आया था कि मैं जैसे पानी की बोतल बेचते मैं ऑक्सीजन की बोतल बेचूं. यार आज की डेट में इंडिया में मैं अगर सूरत में और तुमको बोला मैं तुम्हारे सूरत में तुम्हारे यहाँ बहुत वराछा रोड पे ट्रैफिक है और वहाँ पोल्यूशन बहुत है, तो मेरे से ऑक्सीजन का बोतल ले लो, कितने लोग मुझे 10 रुपया देंगे? एक बोतल का 10 मिनट चलता है ऐसा, मुझे बताओ यार, राइट. तो ये एक मिसनोवर है कि मेरे पास जो आइडिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा आइडिया और मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान हूं. ऐसा नहीं है. प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, बट दिस द फैक्ट, राइट. वो आइडिया को एग्जीक्यूट करना जरूरी है, राइट. और वो आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करना है, दैट्स वन. सेकेंड इंपोर्टेंट पार्ट इज यू कैन ऑलवेज को एग्जिस्ट, राइट. अगर मैं आज अगर कोई बिजनेस कर रहा हूं, राइट, सुरभि का एक बिजनेस है फॉर एग्जांपल वो स्प्रिंग्स, I can copy that idea and we can still coexist, or at some point we can collaborate. Why not?
This is the world of collaboration, not world of competition. Please understand this. This is the only way you can grow. That's my thought. Thanking you for the amazing insight, Jitendra ji and Kashyap ji. I think the answer is very well given, and Rajiv ji को काफी clarity आया होगा. So there are many questions about networking and एक दूसरे से connect होना चाहते हैं लोग. तो उनके लिए मैंने अभी chat box में 2 links डाली है. एक link है स्टार्टअप फोरम जो टाई सूरत का ग्रुप है उसके लिए, दैट इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू गुजरात रिलेटेड या सूरत रिलेटेड स्टार्टअप्स. तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड देन विमेन एंटरप्रेन्योर्स का भी एक मैंने लिंक डाला है. तो ऑल द विमेन एंटरप्रेन्योर्स कैन ज्वाइन दैट विमेन एंटरप्रेन्योर्स वाला व्हाट्सएप ग्रुप, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू सूरत ओनली. सो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज आपकी प्रेजेंटेशन के लिए कश्यप भाई. सो देयर इज वन क्वेश्चन अबाउट हाउ टू ज्वाइन नर्चर प्रोग्राम. Rohan has given the email ID to the team. Rohan ji has answered. But if you would like to add few points on it, Kashyap bhai. So I think we are still working on the nitty-gritties of how do we actually roll out nurture programs. Just give us a couple of days. We'll be formally announcing the program, and then we'll open the link for everyone so that they can apply. There will be a very, very structured form to apply. I think that's the reason why, in my presentation, in the initial slides, I brought few questions. So similar questions will be there for that application also. You should be better prepared for that. So there will be a process. Most probably we'll be rolling out in July this year. So I think next 45 days, we'll be starting the application process, and then we'll be evaluating certain select ideas. And please note that nurture program is only for select startups. So I think we are going to have a certain qualifying criteria for that, so that good ideas we can handhold and support, because for us also this is the first Nurture 1.0. I think TiE Surat will have also certain learning, so we are going to be very, very careful about what kind of ideas we select. But ऐसा जरूरी नहीं कि everyone who are not part of Nurture will not get mentoring support from TiE Surat. TiE Surat is committed to support startups and entrepreneurs, be it networking, be it mentoring, be it investment, education. Those are the very tenet of TiE. So I think जो nurture में qualify नहीं होंगे या TiE women program के लिए qualify नहीं होंगे, उनको भी mentoring support and all kind of other support will be provided by TiE Surat. So please get in touch with us. I think Rohan has already shared email ID and mobile number. To be in touch with us, be part of our group, like our social media pages, so that you keep, be aware of what is happening, and that's all. On the same lines, thank you Kashyap bhai. On the same lines, Ami Desai ji has asked, is the program only for startups or existing ventures also? Jitendra, you would answer this question. Existing or startup is fine. It depends on, when you say existing, what does it really mean? Because existing means if you are a multi-millionaire already, I don't know whether I can help you with that, except the fact that you can hire me, okay, and I can get a job. But beyond job, I think the reality is, yes, existing also is fine, as long as there is a clear perspective around this is where you are at point A and you want to reach to point B in certain duration. If you have a clear vision around that and we are able to help you to achieve that, we'll be more than happy to help you. That's how I would look at it. It's not about just startup, because how do you call it startup? What is the definition of startup? Can somebody tell me? It's just because I don't have a revenue, that's why it's startup? Or it's because I'm only 3 years in the business, that's why it's a startup? So what is the definition of startup? Right? And I'm sure you talk to every single individual, their definition will vary. And hence, given that, I would suggest if you have a question, please explain your business to somebody from TiE Surat, maybe Kashyap ji or Surbi or Sanjay ji or anybody else, and they'll be able to help you that yes, you may qualify or you might not, depending on the business understanding, right? That's how I'll put it. So I'll just add one thing here. Okay, as Jitendra just very rightly said, what is the definition of a startup? There is no definition. We cannot go by what is the government's definition of a startup. So here I'll just like to, tell one very interesting thing shared by Hemant Bhai Jalan. Okay, a TiE Pune charter member who had come to Surat for a masterclass series
last year, a few months back. Okay, so he said one very interesting thing. Jalanji runs a paint company, Indigo Paints. Okay? Now, in paints is absolutely a traditional business. So, when I asked him, how did you raise funds from Sequoia? It's typically known for investing in a tech startups. So he said, basically Sequoia just not invest in startup. The fundamental of that is, do you have that startup mindset or not? I think the whole game is about mindset of getting, having a scalable, feasible, financially viable business model. I think that is the differentiation between a regular business and a startup. अगर मुझे बोलेंगे कि जैसे आज आई थिंक इन द आफ्टरनून वी वर हैविंग अ चैट विद जितेंद्र ने सेड कि यार मैं एक आइसक्रीम पार्लर खोलूंगा, आप नर्चर प्रोग्राम में लेंगे क्या? नाउ वील हैव आवर ओन रिजर्वेशंस अबाउट इट अनलेस यू हैव समथिंग वेरी यूनिक ऑफरिंग ऑन योर बिजनेस मॉडल. आई थिंक उस माइंडसेट आपका क्या है, वेदर इट्स नॉट नीड नॉट बी प्योरली अ टेक्नोलॉजी. आई थिंक ये और एक क्वेश्चन भी जो बार बार हमारे पास भी आएगा कि क्या ये प्रोग्राम सिर्फ टेक स्टार्टअप्स के लिए है, बिकॉज स्टार्टअप नॉर्मली टेक्नोलॉजी से जुड़ा जाता है, बट नहीं, ये necessarily limited to technology. That's what I think we want to make it very very clear. I think यहाँ पे हम जो जैसे जितेंद्र ने बताया कि overall scalability of your business model, वो कुछ ऐसे criteria हम define करने वाले हैं जिससे हम decide करेंगे कि whether this idea or startup or venture will qualify for the nurture program or not. Right. And you're right, it's not technology startup, because last year I remember we had one company who was manufacturing reusable diapers. I mean, no technology whatsoever, right? Not at all, zero technology. They didn't know how to write an email. I mean, that's when they came into the nurture program. So that's perfectly okay, right? It's no technology. Surbi? Hello. Yeah. I think I lost voice in between, so I thought someone is speaking and I lost. Okay, so thank you Jitendra ji and Kashyap bhai for explaining the point. I think for concluding the point, I think all the companies who are having growth mindset and want to reach to a certain level in their businesses can apply for the nurture program, and do get in touch with the TIE members in Surat so that you will get better idea that how nurture can help you in your present business. Next question is from Mr. Hiren Shah. He's asking, when we start company, then it's good progress, but nowadays it's company each and everything in market. How to manage? I think Hiren bhai, if you are there online, you can unmute and ask your question in any language. Language is not a big barrier. Hello everyone. I am just telling about I have one of the good idea, and then we have also the very good team and also funding. But when we have started the company and product also, but after some days the market is copy. So what we do about our investment, the starting, हम अपनी कोई भी कंपनी जब स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारा रिस्क होता है, आइडिया सक्सेस होती है नहीं होती है, ये सब भी हमारे सोच में आता है. जो इन्वेस्टर होता है उनको भी हमको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना होता है. व्हाट इज मार्केटिंग. तो मुझे ये जानना है कि अगर अपनी कोई प्रोडक्ट अपने लॉन्च करते हैं उसके बाद उसकी कॉपी हो जाती है, so that time is marketing is the more than important. I know about it, but how can we manage it then after? So मैं जो समझ रहा हूँ आपका सवाल है कि भाई मैंने मेरा आइडिया या प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च कर दी और फिर किसी ने कॉपी कर लिया और मेरे साथ और भी 5-10 प्लेयर्स मार्केट में आ गए. दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज, राइट? या तो मुझे क्या करना चाहिए वो टाइम पे, करेक्ट? यस. तो आई थिंक हमने पार्शियली ये सवाल इस तरीके से दिया है कि एक तो ऐसा है कि ये तो होने वाला है कि इफ देयर इज मार्केट देयर इज कंपटीशन, इट्स अ गिवन. मतलब अगर आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि भाई मैं एक यूनिक आइडिया लेके आ रहा हूँ इन एब्सोल्युटली डिफरेंट मार्केट, जो मैं ही फर्स्ट हूँ, बट आप फर्स्ट नहीं होने वाले हो, आपके पीछे लोग आने ही वाले. So that is all. Business is all about that competition, being successful in defeating that competition. उसका तो कोई easy उपचार नहीं.
अभी आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? तो आई थिंक अगर मैं आपके आइडिया में ऐसा क्या यूनिक है, काफी टेक्नोलॉजी के जो आइडियाज हैं तो उनका एक डिफरेंशिएटर रहता है कि दे क्रिएट एंट्री बैरियर्स। क्या आप ऐसे कुछ एंट्री बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से जो लोग आने वाले हैं वो 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के बाद आ सके? क्या ऐसा कोई एंट्री बैरियर है? तो आपको एक हेड स्टार्ट मिलेगा। वो रेस है ना, तो रेस में आप भाग रहे हो, अगर आप एंट्री बैरियर नहीं है तो आपके 5-10 मीटर दूर से दूसरा भागना शुरू करेगा, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी आपके आगे चला जाएगा। अगर आप एक बड़ा एंट्री बैरियर रखते हो, आने वाले लोग 6 महीने के बाद आएंगे तो आपको मार्केट कैप्चर करने का एक मौका मिलेगा, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड आता है, फिर आप उनके साथ फाइट कर सकते हो। ये होता है एंट्री बैरियर। भी एंट्री बैरियर रेस कैसे करेंगे? बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल काफी बिजनेसेस हैं जिसमें एंट्री बैरियर ही नहीं है। अगर आप बोलेंगे मैं टेक्सटाइल ट्रेडिंग करूंगा, तो ट्रेडिंग में तो देयर इज नो एंट्री बैरियर। आप चाइना से लेके आएंगे, मैं भी चाइना से लेके आऊंगा, स्टोरी एंड्स। ओके, तो आपको देखना है कि अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी जो है, मतलब अगर टेक्नोलॉजी गेम में आप हैं, तो आपको अगर 1 साल लगता है एक टेक्नोलॉजी डेवलप करने में, ओके, या लेट्स से अगर मैं फाइनेंशियल स्पेस में रोबो एडवाइजरी, एआई एमएल ड्रिवन एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, तो मेरा डेवलपमेंट टाइम एक रिच एआई प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट 18 to 24 मंथ्स है। और फिर मैं मार्केट में आया, अभी किया, वो कॉपी करके 3 महीने में आ तो जाएगा, बट वो जो प्रोडक्ट की जो रिचनेस है वो तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। तो दैट मींस देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट गैप व्हिच विल गिव मी लिटिल लग्जरी टू कैप्चर मार्केट इन द इनिशियल स्टेज। तो आपको देखना है कि अगर आपका मी टू आइडिया है, अगर एंट्री बैरियर नहीं है तो करेगा, तो फिर तो वो मी टू की फाइट है, सोल्यूशन नहीं है। दैट इज व्हाट आई फील। ओके, और मैं ये सर पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर हो जो ऑल ओवर सूरत के अंदर जितने भी पर्सन मोबाइल यूज कर सकते हैं उन लोगों के हमें कांटेक्ट करना हो, या गुजरात में है और स्टेट वाइज है, तो ऐसी कोई कंपनी है मार्केटिंग लेवल में जो हमारी कोई भी प्रोडक्ट को जस्ट दे गिव some messages or that also? Yes, so there are a lot of companies. I think सुरभि आपको ये सेशन होने के बाद सुरभि हम कोई भी आपको उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं. There are a lot of such companies will provide you those SMSCs and numbers and everything. I think that's a very easy marketing tools available. I think Surbhi, Rohan and all, they would know a lot of guys in Surat who are actually doing it. In fact, आपको कस्टमर सेगमेंट वाइज भी डेटा मिल जाएगा, पैन इंडिया मिल जाएगा, तो डोंट वरी अबाउट इट. आपको हम कनेक्ट करा देंगे. अभी आई डोंट हैव दैट नंबर. लेटर स्टेज पे वीरेन जी एंड बाकी ऑडियंस से सभी से रिक्वेस्ट है कि कुछ भी नेटवर्किंग के रिलेटेड आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए टाई सूरत के. वहां पे आप इस तरह की आस्क पुट कर सकते हैं तो आपको कनेक्शंस भी मिल जाएंगे. एंड डेफिनेटली वी आर हियर ऑलवेज, यू कैन रीच आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नेहा. So नेहा जी ने आई थिंक सेफ्टी ऑफ द आइडिया पे ही फर्स्ट पार्ट है उनका क्वेश्चन का, बट द सेकंड क्वेश्चन इज इट बेनिफिशियल फॉर अ स्टार्टअप टू इनिशिएट विद अ पायलट प्लांट और ऑन अ लार्ज स्केल? सो हाउ वुड यू आंसर दैट, जितेंद्र जी एंड कश्यप भाई? जितेंद्र जी, would you like to go first? Sure. I think it depends on the cost. Your idea अगर वो बहुत costly है in terms of the investment, then you should go for pilot. That's one. Second parameter is the market. अगर वो आपको लगता है कि आपके पास मार्केट पोटेंशियल है और आप अगर उनको लेट्स से पहले महीने में 1000, आई एम जस्ट थिंकिंग यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट और आई डोंट नो, बट लेट्स से प्रोडक्ट आप 1000 बेच सकते हैं तो 1000 बनाओ ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे ये नहीं समझ रहा. आई थिंक द ओनली वे आई लुक एट इट, POC करना चाहिए या प्रोडक्शन में जाना चाहिए. मैं सिंपल देखता हूं कि इफ यू थिंक दैट समबडी इज गोइंग टू पे फॉर दिस, जस्ट गो फॉर इट. वो 1 बनाओ या 100 बनाओ, आई डोंट थिंक देयर इज नो साइंटिफिक वे. अभी मैं कुछ भी आपको आंसर दूंगा और आप वो मुताबिक करोगे तो आई थिंक इट्स अ रॉन्ग वे टू लुक एट इट. मुझे लगता है सिंपल वे टू लुक एट इट कि मैं वो प्रोडक्ट बनाने से अगर मेरा नेबर 10 खरीदने वाला है तो मैं 10 बनाऊंगा. वो मुझे लगता आइडिया नहीं है कि कौन खरीदेगा, तो मैं 4 बना के ट्राई करूंगा. घर में भी हम सब्जी बनाते हैं वैसे ही करते हैं ना, रोटी बनाते हैं वैसे ही करते हैं ना. नया कुछ डिश चालू करते हैं तो मम्मी पहले थोड़ा ही बनाएगी कि शायद कोई नहीं खाएगा तो क्या, राइट? सेम अप्रोच. Until Kashyap ji, you have got a different opinion, but my suggestion is sometimes क्या होता है, we as an entrepreneur or a startup entrepreneurs, we think too much about some of these things कि 1 बनाओ 10 बनाओ. अरे मेरे भाई, पानी है, जंप करो, बाहर तो आओगे ही, गारंटेड है बाहर आना.
शायद कोई 1 मिनट में बाहर आएगा, कोई 10 मिनट में आएगा, लेकिन बाहर तो आएगा। डिफरेंस उतना ही। I think I absolutely agree with Jitendra ji. See, कैसा है कि there are two types of ventures. एक जो product driven startups है, उसमें तो obviously initial stage पे it's always better to have a smaller batch size, okay, to test the market, okay. तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी per product cost would be higher, but then at the same time आपका risk is little minimized rather than going for mass production. So that's a advisable thing unless you're very very confident about the market potential. Okay, that's point number one. दूसरी अगर बात करें हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स की, तो वहां पे ऑलवेज चैलेंज आती है कि यार मैं एक पहले परफेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा ना तभी मार्केट में लॉन्च करूंगा। परफेक्ट प्रोडक्ट, ओके, यू हैव टू डिसाइड कि यार अभी मुझे कूद जाना है विद सर्टेन बेसिक मिनिमम जो वायबल प्रोडक्ट के थोड़े ऊपर की स्टेज, बेसिक रफ कट से रफ कट, बिकॉज वो तो प्रोडक्ट तो आपकी इवॉल्व होगी। आई थिंक उसका भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर आप वो एक परफेक्ट प्रोडक्ट के लिए वेट करोगे तो कभी लॉन्च नहीं होने वाला है। आई थिंक वो आपको एक आपका एक इन्फॉर्म्ड जजमेंट लेना है एज एन एंटरप्रेन्योर। तो वही तो खूबी है एक एंटरप्रेन्योर की, वो जजमेंट, वो मार्केट की पल्स आपके पास होनी चाहिए, वो कस्टमर की पल्स आपके पास होनी चाहिए, वो आपको हेल्प कर सकता है। दुनिया का कोई कंसल्टेंट, स्टार्टअप मेंटर आपको उसमें हेल्प नहीं कर सकेगा, बिकॉज जिस तरीके से आप आपका मार्केट समझते हो एज एन एंटरप्रेन्योर, या आप आपके कस्टमर को समझते हो, हम या और कोई कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर्स, मेंटर, इन्वेस्टर्स नहीं समझ सकेगा। इट इज अप टू यू टू टेक दैट कॉल. We can give you a broader framework, we can give you the possibilities and options available, but final call has to be with the entrepreneur. I think आज की डेट में कोई अगर बोले कि मास्क बनाना है या वेंटिलेटर बनाना है, if you are trying to go for POC, it's too late, right? Manufacture 1 lakh, tomorrow morning it will be sold, right? So that's how somebody, so it's like as Kashyap ji said, if you know market, people are going to buy today. 1 लाख बनाओ यार, राजकोट में किसी ने बनाया है ना अभी, राइट? सो आई थिंक दैट्स वन नीड्स टू लुक एट इट. देयर इज अ मार्केट पोटेंशियल, देयर इज अ मार्केट अवेलेबिलिटी, कैप्चर दैट मार्केट नाउ. पीओसी में मत जाओ वो टाइम पे, बिकॉज़ दैट्स टू लॉन्ग ऑफ अ प्रोसेस. Thank you for the insightful answers. We have last question in the chat box. अगर किसी और को question है तो please raise hand or write in the chat box. We are running out of time, so we will briefly take the questions. So last question is, I am unable to read the name. When is the right time to invite investors? Kashyap bhai. Answer is today. Yeah, whenever they are ready to give the check, just get it. Absolutely, absolutely. So I think ये इसका बहुत सिंपल आंसर है कि जो पैसा जब भी दे रहा है तो ले लेना चाहिए, बिकॉज वो कहते हैं ना कि भाई लक्ष्मी चांदलो करवा आवे तारे मोड़ू धोवा नहीं जवानू. सो जिसने भी वो लक्ष्मी चांदलो करने आई थी फरवरी मार्च में और मुंह धोने गए ना, तो अभी उन्होंने बिजनेस से हाथ धो लिए. So I think there is no right time to get money whenever you get access to money. I think it's as simple as that. But I think यहाँ पे सिर्फ मैं एक ऐड करूंगा, बिकॉज हम तो ये लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं. I think it's very very important from whom you take money at what stage. Because हम बोलते हैं ना कि पैसे का कोई कलर नहीं होता है, but unfortunately होता है. Okay, for example, you raising fund from a local, let's say, no offense to real estate guys, but let's assuming a real estate guy. Okay, so a real estate guy from Surat giving you 1 crore rupees and Jitendra ji giving you 25 lakh rupees. I think there is a difference in both the importance of both investment, because कौन पैसा दे रहा है और वो पैसे के साथ क्या वैल्यू एड लेके आ रहा है, क्या नेटवर्क लेके आ रहा है, क्या दूसरी पॉसिबिलिटीज आपकी बिजनेस के लिए लेके आ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आई थिंक ये जो पैसे का ऑब्सेशन है वो दूर करके हमें ये देखना है कि व्हाट इज मनी प्लस. आई थिंक जैसे जितेंद्र ने बोला कि भाई 100x पैसा दे रहा है, मैं 100x से पैसा क्यों दूं, बिकॉज 100x उसके साथ उसका एक नेटवर्क देगा, उसकी एक क्रेडिबिलिटी देगा कि भाई आपको पैसे किसने दिए. संजय मेहता 100x ने दिए जिनकी एक सक्सेसफुल हिस्ट्री ऑफ मेजर एग्जिट्स. तो ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है आपका नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग के लिए. क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है आपको कस्टमर एक्वायर करने के लिए, कि जब भी आप प्राउडली, काफी आपने स्टार्टअप देखे नहीं थे, वेरी प्राउडली सेड कि अरे रतन टाटा इज इन्वेस्टेड मी, मोहनदास पाय इज इन्वेस्टेड मी. ये क्या है? आप अगर एक्चुअली केयरफुली देखेंगे ना, तो उनका जो मॉनेटरी कंपोनेंट है वो बहुत छोटा है कंपेयर टू अदर इन्वेस्टर्स. ओके, वो कभी मेंशन नहीं होता है न्यूज आइटम में. न्यूज आइटम में जिसने बहुत बड़े पैसे दिए वो तो बेचारा मेंशन भी नहीं होता है. ओके, बट वो नाम आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते हैं.
तो आप जब भी कस्टमर के पास जाते हो तो वे बोलते हैं कि बॉस भले मेरे पास आज एक भी कस्टमर नहीं है बट मैंने इनसे पैसे लिए हैं। ओके आप जब भी एक पार्टनरशिप के साथ बात करोगे, आप आपके वेंडर के साथ नेगोशिएट करोगे, आप ग्लोबल मार्केट में जाओगे, तो ये सब फायदेमंद होती है। तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट फ्रॉम whom you take money. Thank you, sir. There's one more question. अगर आप time permit करें तो we can take up that. Last question, yes. Yes, definitely last question. So Mr. Sanjay Nahata is asking, startup में शुरुआत में अगर किसी के पास आइडिया है पर उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, वो कैसे मिलेगा? मैं स्क्रीन में से भाग गया हूँ क्वेश्चन देख के। So, I think जितेंद्र जी आप पहले कुछ बोलेंगे? Friends and family is the easiest option. शादीशुदा हो तो ससुर को बोलो थोड़ा सा दे दे, शायद मौका मिले तो. But jokes apart, I think your best bet will be to go with the friends and family, whom at least you can go and ask them. थोड़ा आप पे ट्रस्ट भी करेंगे वो, आप भी उन पे ट्रस्ट कर सकते हो. That's the only thing. Almost like take it as a friends family investment. और अगर जैसे कश्यप जी ने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर आपका आइडिया अच्छा है, there are few angel investors, because angel investor as name suggests they are supposed to be angel. Okay, they are not VC. VC और angel में थोड़ा फर्क है. So angel investors है तो angel investor fund ग्रुप में अगर जाओगे, कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है, I think that's the ideal choice. One of these two. Second thing is अगर खुद के पास थोड़ा भी है ना डालो, because अगर जब तक खुद का पैसा नहीं है ना, कोई एंजल इन्वेस्टर, कोई वीसी, कोई फ्रेंड्स फैमिली नहीं डालेगा, बिकॉज सबका स्किन, तुम्हारा स्किन गेम में है क्या? दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन एनीबडी विल आस्क. इफ आई एम इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग, सम कंपनी एज एन इन्वेस्टर, फर्स्ट आई विल आस्क कि भैया तुमने कितना डाला है? भले 10 लाख डाला हो, बट 10 लाख तो डाला है ना. सो एटलीस्ट योर स्किन हैज, दैट्स माय रिकमेंडेशन. कश्यप जी. I think absolutely. I think you perfectly said. Skin in the game. I think that is the key. अगर आपका कमिटमेंट नहीं है, okay, it's not a question of 5 lakh or 50 lakhs. Ultimately, you should be committed and people should see that आपका कुछ तो skin in the game है. आपको भी अगर कुछ नुकसान होगा तो आपका भी है. I think startup founders आजकल क्या ढूंढते हैं? मेरे पास आइडिया और मैं मेहनत करने वाला हूँ, बाकी का पैसा का दूसरे का. I think उनको बहुत challenges फेस हो रही है, बहुत टाइम से हो रही है और फ्यूचर में तो और होंगी. तो आई थिंक समवेयर यू शुड रीच सम स्टेज सो दैट इन्वेस्टर्स विल डेवलप दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ आपका भी कुछ कमिटमेंट है, आपका भी समथिंग इज एट स्टेक. Thank you Kashyap bhai and Jitendra ji. Thank you for the amazing insights and for the wonderful presentation. Chat is already flooded with the compliments. I'll now hand over to Sanjay Punjabi for the vote of thanks. Sanjay bhai, hello. Yeah. We are thankful to Kashyap ji for a wonderful session on Idea Quotient. We are thankful to Jitendra Tanna ji, all the way from TiE Pune, and enlighten us so far as the Nurture program is concerned. We are thankful to many people, those who were there. We were approximately 63 people were there in a participant. And we are thankful to Survi ji, who has moderated the session very well. We are thankful to all participants and will be coming soon with more sessions like this. We have a one number 9104281818 that belongs to TiE Surat. So if you have any query, you can jot down this number 9104281818 and you can follow that number on a WhatsApp also. We'll be sharing you more details about that future programs. With this note that we adjourn this program over here. Thank you. Thank you. Thank you all for joining. Thank you Jitendra ji. Bye bye. Thank you Kashyap.